Welcome to CEC online lectures. Today we will be talking about investigative journalism. Investigative journalism is a form of journalism in which reporters deeply investigate a single topic of interest, often involving crime, political corruption, or corporate wrongdoings. An investigative journalist may spend months or sometimes years researching and preparing a report. Investigative journalism is a primary source of information. Most investigative journalism is done by newspapers, wire services, and freelance journalists. Practitioners sometimes use the terms watchdog journalism or accountability journalism. तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म असल में खोजी पत्रकारिता की सबसे अहम ब्रांच है. इसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है और आमतौर पर जब इसकी शुरुआत हुई तो इसे समाचार पत्रों में ज़्यादा देखा गया, लेकिन धीरे धीरे वायर सर्विसेज, टेलीविजन मीडिया और बाद में ऑनलाइन जर्नलिज्म भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ब्रांच का इस्तेमाल करने लगी. British media theorist U.D. Burke states that an investigative journalist is a man or woman whose profession it is to discover the truth and to identify lapses from it in whatever media may be available. The act of doing this generally is called investigative journalism and is distinct from apparently similar work done by police, lawyers, auditors, or regulatory bodies. It is not limited as to target, not legally founded, and closely connected to publicity. Story-based inquiry, an investigative journalism handbook published by UNESCO, defines it that investigative journalism involves exposing to the public matters that are concealed either deliberately by someone in a position of power or accidentally behind a chaotic mass of facts and circumstances that obscure understanding. It requires using both secret and open sources and documents. आपने अगर जर्नलिज्म की पढ़ाई की है या आप कर रहे हैं तो आप जानते होंगे ये जर्नलिज्म में सोर्सेस बहुत ज़रूरी हैं और खोजी पत्रकारिता की जब बात हो तो उसमें ये और भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित होते हैं और इनका मकसद किसी भी खबर की तह तक जाकर सच की पड़ताल करना होता है. University of Missouri journalism professor Steve Weinberg defined investigative journalism as reporting through one's own initiative and work product matters of importance to readers, viewers or listeners. खास तौर पर ये कि जो जनता के काम के हैं, जनता के लिए है और जिससे जनता की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता हो, उसे कोई ऐसी जानकारी मिलती हो जिसका उसकी जिंदगी से गहरा ताल्लुक हो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक महत्वपूर्ण जरूरत मानी जाती है. Investigative journalism goes back a long time, although its roots are in the United States and Europe. Described as the first American investigative journalist, Henry Demarest Lloyd published a series of articles exposing corruption in business and politics in the year 1880. These articles included the story of the great monopoly, the political economy of $73 million. In America, it is said that investigative journalism became a movement in 1902 when McClure's magazine and Everybody's magazine joined Arena, a magazine specialized in poverty and unemployment and social reforms. President Roosevelt, the 26th President of the United States, called it muckraking, accusing investigative journalists of being troublemakers. Nonetheless, he responded to the demand for investigative journalism by initiating legislation to tackle some of the issues raised in the articles. Some of the notable legislations were the Meat Inspection Act of 1906 and Pure Food and Drugs Act of 1906. Since then,
Investigative journalism has had its ups and downs and successes and of course failures. One of the best known cases of investigative journalism is the Watergate scandal that led to the resignation of the US 37th President Richard Nixon in 1974. The investigations were carried out by two Washington Post reporters, Bob Woodward and Carl Bernstein. इस पूरी घटना को, वाटरगेट स्कैंडल को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कितने विस्तार के साथ और कितनी शांति के साथ, कितने मुश्किल से साथ और चुनौतियों के बीच की जाती है. The evaluation of investigative journalism does not translate into a continuous historical narrative. Rather, it can be described as a cynical evaluation that is dependent on particular circumstances and conditions that relate to the media institution, the journalist, the political, economic and social conditions at the time. In the 80s, investigative stories used to be far and few between and remained restricted to small pockets like towns, cities and states. In 1982, the Statesman formed a team of investigative journalists called Insight Team. This team brought out a series of articles on the misuse of public funds. During this period, the Times of India carried a lot of investigative reports about the nexus between politicians and criminals. However, it was the Hindu which stole the show with the investigation of the notorious Bofors case involving sales of Bofors guns to India. It took almost 3 years of painstaking investigation to bring out this report. The investigative reports published by the Indian Express and the Hindu on the Bofors gun scandal are landmarks in Indian journalism. असल में उस समय इन दोनों अखबारों ने जिस पत्रकारिता को सामने लाकर एक प्रतिमान कायम किया, उसे आज भी जर्नलिज्म की पढ़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह दी जाती है. However, it was during this period that sting operations became popular, like the 1992 expose of the infamous Bombay stock scam by Suchita Dalal. Later, Tehelka gave a new dimension altogether to investigative journalism and also raised the issue of ethics and means used in doing investigative stories. TV channels contributed their own part by coming out with so-called sting operations. Sting operations असल में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक बहुत दूसरी शाखा है. टेलीविजन जर्नलिस्ट ने इसका काफी इस्तेमाल किया और कई बार इसकी बहुत मिसयूज की बातें भी सामने आईं. इसलिए आप उसके बारे में भी जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये दोनों शाखाएं कैसे अलग अलग तरीके से काम करती हैं. इसलिए ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कदम रखते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाए. वो कौन सी शाखाएं हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या हिस्से हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत किसी जर्नलिस्ट को पड़ सकती है. आमतौर पर अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. These range from local councils to national parliaments and foreign governments. Sometimes politicians and public servants are actually corrupt and should be exposed and removed from office. Authorities इसलिए those who are holding power if they are doing anything which is not worthy of the position, या फिर अगर किसी भी तरह का पावर का मिसयूज हो रहा है तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तहत उसकी तथ्यपरक पड़ताल हो सकती है. इसी तरह कंपनीज, some companies break the law and should be exposed. Perhaps they have made a mistake or lost money. Perhaps they do not want competitors to steal their secrets, or they do not want people to oppose a development they are planning.
तो इसलिए कई बार कंपनीज भी किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकती हैं। जैसे किसी कंपनी ने किसी को कोई बहुत बड़े स्केल पर लोगों को किसी तरह का कोई वादा किया है और उसके जरिए कोई फ्रॉड हो रहा है जो कि सामाजिक अहित कर सकता है, तो उसकी पड़ताल भी हो सकती है। और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है क्रिमिनल्स, अपराधी। Although governments and companies can be corrupt, criminals make their living at it, and they can be dangerous to the entire society, to the community, and thus readers and listeners have the right to know about them. Fighting crime is of course mainly the job of the police and the legal system, but sometimes it is also important for the journalists to keep an eye on the criminal activities, and they can also investigate cases if that can help further the judiciary or the society. Investigative journalism makes an impact in the society by reversing policy. जैसे किसी पॉलिसी को बनाया गया लेकिन बाद में ऐसा लगा कि शायद उसमें किसी तरह का बदलाव होना चाहिए या उसे रिवर्स करना चाहिए क्योंकि ये जनता के हित में है, तो ऐसे काम भी कई बार इस तरह की तथ्यपरक जर्नलिज्म की वजह से हो पाता है। कॉजिंग द रेजिग्नेशन और फायरिंग ऑफ एयरिंग ऑफिशियल्स, अगर किसी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, कोई बहुत बड़ी गलती की है, अपराध किया है, करप्शन की है, और अगर उसे प्रूव किया जाता है तो उससे भी उस पर कार्रवाई करने की कोशिश हो सकती है। फोकसिंग अटेंशन प्रीवियसली निग्लेक्टेड इश्यूज एंड एरियाज, कई ऐसी जगह हैं, चाहे वो लोकल स्टोरी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अगर कुछ इश्यूज हैं जो पूरी तरह से अनदेखे किए जा रहे हैं या कुछ काम है जो नहीं किए जा रहे या रुके हुए हैं, वहां पर भी इन्वेस्टिगेट करके उनके कारणों की जांच करके मदद की जा सकती है। एनरिचिंग पब्लिक डिबेट, आपने कई बार देखा होगा कि कई ऐसे सामाजिक मुद्दे खास तौर पर होते हैं जिसमें जनता डिबेट करती है या जनता की हिस्सेदारी होती है। सार्वजनिक स्तर पर लोगों की इस तरह की भागीदारी को भी जोड़ने में इस तरह की खोजी पत्रकारिता का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक खोजी पत्रकार कैसे बना जाए? ऐसे कौन से गुण हैं, क्वालिटीज हैं या स्किल्स हैं जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में होनी चाहिए? सबसे जरूरी है इंटरव्यूइंग स्किल्स, क्योंकि आप जब तक किसी को ठीक से सवाल करना नहीं जानेंगे तब तक वैसे जवाब भी आपको नहीं मिल पाएंगे जिससे आप अपनी खबर को फाइल कर सकें। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी विधा है। 3 तरह से तैयारी की जाती है इंटरव्यूइंग के लिए: प्री इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड पोस्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले रिसर्च, पूरी जांच पड़ताल, उस पर पढ़ाई, उस पर नोट्स, बैकग्राउंड की जांच, और उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान सही और सटीक सवाल, जवाबों में से सवाल निकालने की विधा का आना और उसी के आधार पर इंटरव्यू को आगे बढ़ाना। यहां पर रटे रटाए 5 सवालों से काम होगा ऐसा नहीं होगा, बल्कि सवाल बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से तैयार होने चाहिए और जवाब से भी नए सवाल बनाने की शैली पत्रकार को आनी चाहिए ताकि एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो सके। इसी तरह ये भी जरूरी है कि रिपोर्टर में सुनने की एक आदत हो और वो सही बात को सुने, सही तरह से लिखे ताकि मिस रिपोर्टिंग ना हो। और फिर पोस्ट रिपोर्टिंग, पोस्ट इंटरव्यूइंग स्टेज, इंटरव्यू होने के बाद उस पूरी इंटरव्यू को जोड़ना और उसमें से जरूरी बातों को निकालना और फिर पूरी सोच और समझ के साथ एक गंभीर स्टोरी को फाइल करना। ऑब्जर्वेशन, ये भी जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं उसे ध्यान से देखना, जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने देखा उसे ठीक से पढ़ना और उसमें से पड़ताल करते हुए खबर पर काम करना। चेजिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे।
आपको उन्हें चेज करना होगा, ढूंढना होगा, निकालना होगा और फिर उन्हें गहराई से पढ़ना होगा ताकि आप जो रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो। An alert mind to recognize story ideas and important facts which people are trying to hide। और इसीलिए कहा जाता है कि जो बताया जा रहा है वो तो है पब्लिक रिलेशंस और जो छुपाया जा रहा है वो है असल में खबर। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का ये काम है कि जो चीज जनता के हित में है लेकिन उसे छुपा दिया गया है और जनता को अधिकार है उसे जानने का, तो उसे ढूंढने के लिए वो अलर्टनेस के साथ काम करे और पूरे कंस्ट्रक्टिव माइंड को रखते हुए काम करे, अनबायस्ड तरीके से काम करे। An ordered mind to make notes, file information and fit lots of facts together। असल में ये इस तरह का काम सिर्फ 5 W's और 1 H का नहीं है, उससे कहीं आगे जाकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगाल के खबर को तराशने और तलाशने का काम है। इसलिए नोट मेकिंग बहुत ही केयरफुली करने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की, जरूरी बातों को बाहर लाने की और जो काम की नहीं है उसे छांटने की कला भी पत्रकार को आनी चाहिए। पेशेंस टू कीप डिगिंग फॉर इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी एक ही दिन में नहीं हो सकती, वो लंबी प्रक्रिया है। आपने देखा वाटरगेट स्कैंडल, उस स्टोरी को करने में कितना लंबा समय लगा, वो फोर्स उस पर काम करीब 3 साल तक हुआ। तो पेशेंस चाहिए, संयम और सब्र चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों से बात कर रहे हैं और एकदम निचले स्तर पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से जो आपका संवाद हो रहा है उस सब को जोड़कर बहुत पेशेंस के साथ इन्वेस्टिगेट करना होता है। गुड कॉन्टेक्ट थ्रू द सोसाइटी, ये जरूरी है कि आप जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं वहां आप लोगों को ठीक से जानते हो ताकि आप उनके संपर्क में आकर ज्यादा जानकारी को लेकर अपनी खबर को बना सकें। करेज टू विथस्टैंड थ्रेट्स फ्रॉम पीपल द जर्नलिस्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग। ये बहुत आम सी बात है। इस तरह का जर्नलिज्म खतरे का जर्नलिज्म भी होता है, बहुत जोखिम है और कई बार धमकियां भी आ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि जर्नलिस्ट जो काम कर रहा हो उसे पूरे संयम, सब्र और करेज के साथ करे और जो भी वो करे वो अनबायस्ड हो। सो व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट? कई ट्रेट्स हैं, जैसे ही शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ न्यूज एंड लीड्स। ये बहुत जरूरी है कि वो जानता हो खबर क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट खबर क्या है, उसे खबरों के इतिहास के बारे में पता हो, बैकग्राउंड मालूम हो, खबर को ठीक से सर्च करने का तरीका मालूम हो और वो फेक न्यूज से भी बचे, क्योंकि इन दिनों आप जानते हैं कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा चलन में है। इसलिए जो जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा हो उसे पूरी तरह से फैक्ट्स आधारित रिपोर्टिंग करनी होगी। ही मस्ट बी एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, तो आपको उन्हें ठीक से एनालाइज करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा और उसे ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि जब आप स्टोरी करें तो एक प्रॉपर वर्ड लिमिट में प्रॉपर साइज की स्टोरी को आप अंजाम दे सकें। द जर्नलिस्ट मस्ट बी मोटिवेटेड बाय हाई जर्नलिस्ट एथिक्स एंड मॉरल्स। ये बहुत जरूरी है। एथिक्स के बिना जर्नलिज्म नहीं चलता। आपको भले ही कई बार लगता हो कि हम कई बार जिस जर्नलिज्म को देख रहे हैं शायद वो बहुत एथिकल नहीं है, लेकिन वो हो या ना हो, ये जरूरी है कि एज अ जर्नलिस्ट आप जो भी काम करें, जो भी लिखें या बोलें, वो पूरी तरह से एथिकल हो, मॉरली करेक्ट हो और आपकी तथ्यपरक रिपोर्टिंग से ही उपजा हुआ हो। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मस्ट प्रोटेक्ट हर सोर्सेस। अगर किसी सोर्स ने कहा है कि उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाए, किसी को ना कहा जाए, तो उसे उसको प्रोटेक्ट हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वो सोर्स हो सकता है आगे से कभी भी कोई खबर ना दे। ही मस्ट बी पेशेंट एंड सेल्फ ड्रिवन। ये रोज का काम है, इसलिए उसे अपने आप को खुद ही ड्राइव करना होगा।
अपने अंदर उस ऊर्जा को बनाकर रखना होगा, अपने अंदर उस एंथुजियाज्म को बनाकर रखना होगा, ताकि रोज वो स्टोरी पर आगे काम कर सके। टीम स्पिरिट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है कि जिस टीम में वो काम कर रहा है उसमें वो सबको साथ में लेकर चले और उसकी संवाद की शैली प्रभावशाली हो, सबको जोड़कर आगे बढ़ाने वाली हो। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शुड टेक द इनिशिएटिव, यानी ये कि उसे ये इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहिए कि जो स्टोरी वो कर रहा है उसे वो आगे कैसे बढ़ाएगा। अगर कोई ऐसी खबर है जिसमें उसे लगता है कि इसे एनालाइज करना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव करना चाहिए, तो उसकी पहल उसे खुद ही करनी होगी। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में। ब्रेक के बाद हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे।